اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے ترکیہ نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی استنبول میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا جنگ ہو یا قدرتی آفات، ترکیہ نے دل کھول کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ خاتون اول امین ایردوان نے اپنا ذاتی ہار تک پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے عطیہ کر دیا۔ دونوں ملک باہمی تعلقات کا نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان بھی ہمیشہ ترکیہ کا ساتھ نبھائے گا۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ صدر طیب ایردوان کا خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے جارحیت کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد اب معاشی میدان میں ترقی کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاک ترکیہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب۔ کہا ترکیہ نے طیب ایردوان کی قیادت میں بے مثال ترقی کی، توانائی سمیت معیشت کے مختلف شعبوں میں ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، فیلڈ مارشل کی قیادت نے بھرپور جواب دیا اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعظم کا کراچی کے اسپیشل اکنامک زون میں ترکیہ سرمایہ کاروں کے لیے 1000 ایکڑ زمین وقف کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور ترکیہ نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ نائب وزیر اعظم ساختیار کا پاک ترکیہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب۔ کہا بدلتے عالمی منظرنامے میں معاشی تعاون کی جہت تبدیل ہوئی۔ مصنوعی ذہانت، صنعتی انقلاب، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت متعدد شعبوں میں پاکستان اور ترکیہ ایک دوسرے کی اہلیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ معاشی شراکت داری کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ترک نائب صدر نے کہا کہ عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ برادرانہ تعلقات کو دونوں ملکوں کی معیشتوں کی مضبوطی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کانفرنس سے وفاقی وزیر اویس لغاری، علی پرویز ملک اور شیزہ فاطمہ خواجہ نے بھی خطاب کیا۔ ایران کو آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی چھٹی دی کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ملک کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا ایرانی سمجھوتا کرنے کے لیے بے تاب ہیں، وہ جلد سے جلد معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ امریکہ امن پسند ملک ہے لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ تقریب میں صدر ٹرمپ نے اپنا مخصوص ڈانس بھی کیا۔ جنگ کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہے، امریکہ حقائق کو تسلیم کرے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد حالات ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئے ہیں۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ ٹرمپ ایران کے بجائے اپنے ملک میں غذائی قلت کے مسائل پر توجہ دیں۔ امریکہ کے 4 کروڑ سے زائد شہری فوڈ سٹیمپس پر گزارا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر اپنی سنیپ اسکیم کے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ ہمارے وسائل ہمارے اپنے ہیں، ہمارے فیصلے بھی ہمارے اپنے ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریبات، ایران بھر میں سوگ، ہر آنکھ اشکبار۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعزیتی اجتماع میں شرکت۔ وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں کہا مرحوم سپریم لیڈر کی بصیرت اور دانشمندانہ قیادت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت۔ تہران کے بڑے مذہبی اور ثقافتی مرکز گرینڈ مسلح میں عوامی التوا کی تقریب کا آغاز۔ ہزاروں کی تعداد میں ایرانی عوام تعزیت کے لیے گرینڈ مسلح پہنچنے لگے۔ مرکزی نماز جنازہ 5 جولائی کی صبح ادا کی جائے گی۔ جنازے کا جلوس 6 جولائی کو تہران سے شروع ہوگا۔ 7 جولائی کو قم میں جلوس نکالا جائے گا جس سے خاکی عراق کے شہر کربلا اور نجف بھی لے جایا جائے گا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्किया के अहम कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के आला ओहदेदारों से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कारोबारी सतह पर बाहम राब्ता मजबूत बनाने के लिए तुर्क कारोबारी इदारों की मुसलसल कोशिशों को सराहा। कहा SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत और इदारा जाती मुआवनत फराहम कर रही है। तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान में ऑपरेशंस बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। MQM का एक बार फिर कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा। फारूक सत्तार की वज़ीर आज़म से 30 मार्च 2022 के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मदाखलत की अपील। कहा कराची के लोगों का एहसास महरूमी हर हद से तजावुज़ कर रहा है। वज़ीर आज़म नाराज़ी बढ़ने से पहले कराची आएँ, वफाक बाद में मदाखलत ना करे, रोकना है तो अभी रोक लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध 30 मार्च 2022 के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। कराची के अवाम सड़कों पर आ गए तो रोकना मुश्किल होगा। सिंध के मामलात विफाक को देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ मजमूम साजिश है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार का विफाकी हुकूमत की मुदाखलत का बयान सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहा MQM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MQM को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का अहम बयान सामने आ गया। कहा दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इसके हक के दिफा में की कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया। भारतीय वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर एक और जग हंसाई का सामना। नरेंद्र मोदी को मिलने वाले गैर मुल्की एजाज़ात मुतनाज़े हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन हक़ाइक़ सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक सेशल्स में दिया गया अवार्ड मोदी की आमद से 3 दिन पहले तैयार किया गया। सर्टिफिकेट में रिपब्लिक सेशल्स के अल्फाज गलत दर्ज। इथोपिया के ग्रेट ऑनर अवार्ड पर भी सवालात उठ गए। भारतीय ओपोजिशन की वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा अवार्ड चाहे कोई भी हो, मोदी दौड़े चले जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी को मिलने वाले एजाज़ात की कहानी इंतहाई शर्मनाक है। मोदी अपनी कौम का सर शर्म से झुका रहे हैं। कहा मोदी को मिलने वाले अवार्ड उनकी आमद से चंद रोज़ पहले सस्ते AI मॉडल की मदद से तैयार किए गए। अता तारड़ ने कहा कि BJP ने इन एजाज़ात को कौम के लिए फ़ख्र करार दिया। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा इंटरव्यूज़ के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी तजवीज़ करदा नामों पर इंटरव्यू करेगी। जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। पहली बार जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए आईनी निज़ाम ला रहे हैं। जजेस इवेल्यूएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगी। कानून की हुक्मरानी और पासदारी ज़रूरी है। पंजाब बार काउंसिल वकला के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पुलिस में 1712 असामियों पर भर्तियों के हवाले से अहम ऐलान। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भर्ती सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होगी, किसी भी सिफारिश की गुंजाइश नहीं। भर्ती के अमल पर असरअंदाज होने की किसी भी कोशिश पर उम्मीदवार को फौरी नाअहल करार दे दिया जाएगा। दरखास्तें मुतल्लिका वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी बोर्ड ने 30 हलकों में अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान पार्टी उम्मीदवारों में टिकट तकसीम करेंगे। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों में आज़ाद कश्मीर के अलावा मुहाजिरीन भी शामिल हैं।
पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की तफसीलात सामने आ गईं। 1 लीटर पेट्रोल पर 118 रुपये 76 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन्स वसूल किया जा रहा है। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपये 65 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन्स आयद हैं। पेट्रोल की फी लीटर लागत 178 रुपये 77 पैसे बनती है। 1 लीटर डीजल पर 110 रुपये 65 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन्स आयद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी महंगाई का जोर तोड़ने में नाकाम। लाहौर में आटा, घी, तेल, दालें और चावल सब बदस्तूर आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल और घी 605 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया। शहरियों के मुताबिक दूध 170 के बजाय 240 रुपये फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। बलूचिस्तान में दानासर के मकाम पर बस खाई में गिरने का वाकया, जाम बहक 40 अफराद को आहों सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका कंपनी का दफ्तर सील कर दिया गया। हादसे का मुकदमा थाना शेरानी में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया। सानिया ज़ुआत में लाहौर के एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। लापता लड़की तलाश चौथे रोज भी जारी। पाक बहरिया रेस्क्यू टीमें और मकामी रजाकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। झील सैफुल्ला में कश्ती डूबने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। मफरूर कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। शुमाल मशरकी पंजाब, पलाई पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। यूरोप में हीट वेव, बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। गर्मी की शिद्दत के बायस शहरी बुखला गए। फ्रांस की सुपरमार्केट्स में पंखों और पोर्टेबल एसी की खरीदारी के लिए धींगा मुश्ती। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस तलब करना पड़ गई। शदीद गर्मी से फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2025 में अमवात हुई और बेल्जियम में 1200, नीदरलैंड में 480 जान की बाजी हार गए। रूस का यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भारी जानी नुकसान के सबब यूक्रेनी फौज पसपाई इख्तियार कर रही है। मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेनी फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। यूक्रेन जिस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा, सिक्योरिटी जोन को उतनी ही तौसी दी जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। अर्जेंटीना केप वर्डी को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया और मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट पर हराकर पहली मर्तबा प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कोलंबिया ने भी घाना के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल करके प्री क्वार्टर फाइनल में सीट पक्की कर ली। सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रैंडनिक को 4 सेट्स में शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया की डारिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। और मुनफरिद अंदाज़े गायकी, दिलकश आवाज़ और सूफियाना रक्स, अजीम लोक और सूफी गुलकार अलन फ़कीर को बिछड़े 26 बरस बीत गए। सूफियाना और लोक मौसीकी के हवाले से उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।